اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ بندی ہو چکی ہے، تاہم اسرائیل کی ظالمانہ پالیسی کے خلاف اب دنیا کے امن پسندوں کو آگے آنا ہوگا۔ اس بات کی اپیل مسلم نمائندہ کونسل نے کی ہے۔ ڈویژنل کمشنر کے توسط سے صدر جمہوریہ ہند کو روانہ کردہ میمورنڈم میں حکومت ہند سے اسرائیل کے خلاف اقوام متحدہ میں آواز اٹھانے کی اپیل کی گئی۔ ساتھ ہی غزہ پٹی پر حملے کے بعد جو جانی اور مالی نقصان ہوا اس کی بھرپائی کا بھی مطالبہ کیا گیا ہے۔ مسلم نمائندہ کونسل کے صدر ضیاء الدین صدیقی نے میڈیا سے بات چیت میں حماس کے راکٹ حملوں کو دفاع کے حق سے تعبیر کیا اور عالمی طاقتوں سے اپیل کی کہ وہ عالمی امن کے لیے اسرائیل کو وحشیانہ مظالم سے باز رکھنے کے لیے مستقل پہل کریں۔ اور خبر اتر پردیش سے مسجد غریب نواز انہدام معاملے میں نیا موڑ آ گیا ہے۔ مسجد کی ملکیت کا دعویٰ اور از سر نو تعمیر کا مطالبہ کر رہے 7 لوگوں پر کیس درج کر لیا گیا ہے۔ رام اسنیہی گھاٹ تحصیل احاطے میں ناجائز قبضے کا معاملہ دکھا کر مائنورٹی افسر نے کیس درج کرایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ رہائشی زمین کو وقف املاک دکھایا گیا ہے۔ سنی سینٹرل وقف بورڈ کے افسران و ملازم پر بھی شامل ہونے کا الزام ہے۔ اور اب ایک بہت اہم خبر مدھیہ پردیش سے۔ مدھیہ پردیش کے جبل پور میں موب لنچنگ کا معاملہ سامنے آیا ہے۔ کچھ ہندو انتہا پسندوں نے ایک مسلم دکاندار پر بدتمیزی کا الزام عائد کرتے ہوئے اس کی بے رحمی کے ساتھ پٹائی کر دی۔ عورت سے بدسلوکی کے نام پر دکاندار سے مار پیٹ کی گئی، لیکن وہی خاتون نے اپنے بیان میں کسی بدتمیزی سے انکار کر دیا۔ پولیس نے ان غنڈوں کے خلاف کارروائی کرنے کے بجائے دکاندار کے خلاف ہی لاک ڈاؤن کی گائیڈ لائن پر عمل نہ کرنے پر معاملہ درج کر لیا ہے۔ سے کھلی ہوئی تھی اور میں اپنے موبائل کا ریچارج کرانے کے لیے گئی تھی کیونکہ ریچارج ختم ہو گیا تھا، تو وہاں پر اچانک بھیڑ آ گئی اور لوگ بولنے لگے کہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں، اور میم ایسا ہمارے ساتھ کچھ بھی نہیں ہوا ہے، اور وہاں پھر پولیس آ گئی، پھر ہم لوگ کو تھانے لے آئی۔ کوئی غلط کام تو نہیں ہوا آپ کے ساتھ؟ نہیں، میں ان کے اوپر کوئی بھی کارروائی نہیں کرنا چاہتی ہوں۔ اور اسی بات پر اسد الدین اویسی نے بھی ٹویٹ کیا اور انہوں نے کہا ہے کہ پولیس نے ان غنڈوں کے خلاف سخت کارروائی کرنے کے بجائے دکاندار ہی کے خلاف معاملہ درج کر لیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ بھلا کسی بھی سبھی سماج میں ایسے اپرادھیوں کو پناہ کوئی بھی سماج نہیں دے سکتا ہے۔ مالیگاؤں پاورلوم صنعت لاک ڈاؤن کی وجہ سے سخت بحران کا شکار ہے۔ شہر کے اکثر کارخانے بند ہیں۔ پاورلوم صنعت اس وقت حکومت کی توجہ کی محتاج ہے، لیکن لاکھوں لوگوں کو روزگار فراہم کرنے والی پاورلوم صنعت حکومت کی عدم توجہی کا شکار ہے۔ پیش ہے مالیگاؤں سے ہمارے نمائندے محی الدین کی یہ خاص رپورٹ۔ ممبئی سے تقریباً 280 کلومیٹر کی دوری پر واقع پاورلوم کے شہر مالیگاؤں کے تعلق سے کہا جاتا ہے کہ جب پاورلوم کا چکا گھومتا ہے تو شہر کی نبض میں زندگی گردش کرنے لگتی ہے۔ جہاں پاورلوم بند ہوتا ہے تو شہر کے ہر کاروبار کی رونق مان پڑنے لگتی ہے۔ مالیگاؤں میں ان دنوں 80% سے زیادہ پاورلوم مکمل طور پر بند ہیں۔ کورونا وائرس اور لاک ڈاؤن نے بھیونڈی اور مالیگاؤں کی پاورلوم صنعت کی کمر توڑ کر رکھ دی ہے۔ ایک اندازے کے مطابق مالیگاؤں روزانہ تقریباً 45 کروڑ کی لاگت کا گرے کلاتھ تیار کرتا ہے، لیکن کورونا کے قہر اور لاک ڈاؤن نے بنکروں کو اپنے کارخانوں پر تالا لگانے پر مجبور کر دیا ہے۔ پاورلوم کے بند ہونے کے سبب مزدور طبقہ سب سے زیادہ متاثر ہے۔ اس کی نگاہ بھی مرکزی و ریاستی حکومت کی امداد پر ٹکی ہوئی ہے۔ مالیگاؤں پاورلوم صنعت سے بڑی تعداد میں خواتین مزدور بھی منسلک ہیں۔ یہ خواتین کارخانوں میں تراشن بھرنے کا کام کرتی ہیں اور اپنے اہل خانہ کا پیٹ پالتی ہیں۔ اب ان کے لیے بھی زندگی کا گزر بسر مشکل ہو چکا ہے۔ یہ ہمارا پاورلوم صنعت ہے نا، بہت زیادہ بحران کا شکار ہو گئی ہے۔ یہ ابھی تہوار پر جو بند ہوا ہے تو یہ کب آگے چالو ہوگا ہم اس کا بول نہیں سکتے ہیں، اور لاک ڈاؤن کی وجہ سے جو یہاں کے جو ہمارے تاجر لوگ تھے، بیوپاری لوگ تھے، جو ہمارا مال خریدتے تھے، تو وہ سب اپنے اپنے شہر چلے گئے ہیں، اور آگے ہم بول نہیں سکتے کہ کب چالو ہوگا۔ ہماری صنعت بہت زیادہ بحران کا شکار ہے۔ ہماری پریشانی آگے یہ ہے کہ یار ایسے ہی حالات رہے
तो हमको खाने के लिए है ना इधर उधर रोजी रोजगार के लिए भटकना पड़ेगा। लॉकडाउन की वजह से हमारा कारखाना जो है रमज़ान में जैसे तैसे तो चल गया, 2 दिन 3 दिन। हमने बहुत मुशक्क़तों से और बहुत परेशानियों से हमारे बच्चों का बाल बच्चों का पेट भरा है। तो हमारा ये कहना है कि यार जैसे रिक्शा ड्राइवर है और दूसरे जो लोग हैं लूम से हट कर सरकार ने जो उनको यानी इमदाद दी है, तो हमारा भी यही मानना है कि यार हम भी मज़दूर है, हमारे भी अकाउंट में पैसा डाला जाए, वरना हम हमारे खाने को वांदे हो जाएंगे। मैं अकेली कमाने वाली हूँ। हाय, ये कोरोना की वजह से बार बार कारोबार बंद हो जाता है। हाय, कैसे चलेगा हमारा? बस 8-9 टन की फैमिली है हमारी। अगले साल भी कोरोना की वजह से हम कुछ नहीं कर पाए थे, ये साल भी ऐसे हुआ। मालेगांव के तमाम कारोबार की तेजी और मंदी भी पावरलूम से ही मुंसलिक है। पावरलूम बंद होता है तो शहर के तमाम कारोबार मुतासिर हो जाते हैं। वजह साफ है कि पावरलूम का चलना ही लोगों के लिए इनकम का जरिया है। ऐसे में पावरलूम बंद होने से छोटे कारोबारी भी परेशान नजर आ रहे हैं। धंधे पे बहुत ढेर सारा असर पड़ेगा। पावरलूम बंद है मालेगांव का, जितना भी पावरलूम है सब लूम के ऊपर कारोबार है, धंधा उसके ऊपर ही चलता है, लूम के ऊपर। उसकी वजह बहुत दिक्कत आ रही है। होटल का धंधा बहुत मार खा गया है और ऊपर से लॉकडाउन लगे ले, उससे सबसे ज़्यादा तकलीफ वो हो रही है। पावरलूम की सनत लॉकडाउन के बिना पर बहरानी कैफियत की शिकार है। लोगों का जीना मुहाल है। इस शोर शराबे वाले इलाके में सन्नाटों का बसेरा है। आमतौर पर शोर शराबे को मनफी अंदाज में लिया जाता है, लेकिन मालेगांव में पावरलूम का शोर जिंदगी की अलामत है। अब इस सनत से वाबस्ता अफराद परेशान हैं। ताल्लुका पावरलूम संघर्ष समिति ने पावरलूम बिल माफ़ करने का मुतालबा किया है ताकि उन्हें कुछ राहत मिल सके। सबसे पहले तो देखो, कोरोना वायरस की वजह से हमारी तमाम मंडी ऊपर बंद है, जहाँ हमारा पक्का माल जाता है। तो हमको हुकूमत से कुछ ज़्यादा नहीं चाहिए। हमारे गांव में भी कलकत्ता पावरलूम लिमिटेड कंपनी प्राइवेट आई हुई है। हम सिर्फ गवर्नमेंट से इतना चाहते हैं, रियासती गवर्नमेंट से इतना चाहते हैं कि हमारी थोड़ी पावर बिल जो है वो माफ़ कर दी जाए। 3 महीने की पावर बिल माफ़ की जाए ताकि हम जिस नुकसान से कारोबार कर रहे हैं हमको थोड़ी उसमें सहायता हो जाए। बहरानी सूरत हाल में बुनकर बिरादरी की निगाहें रियासती और मरकजी हुकूमत पर टिकी हुई हैं। वक्त रहते बुनकरों के मसाइल हल नहीं किए गए तो अलीगढ़ के ताले, मुरादाबाद के बर्तन और कानपुर की चमड़े की सनत की तरह मालेगांव भिवंडी पावरलूम सनत का बहरान भी मज़ीद संगीन सूरत हाल इख्तियार करता जाएगा और अपने शोर से लोगों को नई ज़िंदगी देने वाले पावरलूम हमेशा के लिए खामोश हो जाएंगे। कोरोना वायरस और लॉकडाउन की वजह से जहाँ पर हिंदुस्तान की कई सनतें बर्बादी के दहाने पर हैं, मालेगांव का पावरलूम भी जो है वो इसी बर्बादी के दहाने पर खड़ा हुआ है। हर कारोबार मुतासिर है और मालेगांव भिवंडी के पावरलूम भी जो है वो इससे बुरी तरह मुतासिर है। हालात यूँ हैं कि पावरलूम मजदूर जो है यहाँ से हिजरत करने पर मजबूर है और पावरलूम बुनकर अपना कारोबार बंद करने पर। मोहिउद्दीन, न्यूज़ 18 मालेगांव। खबर में आगे बढ़ते हैं। दारुल उलूम देवबंद के नायब मोहतमिम और जमीयत उलमा हिंद के कौमी सदर मौलाना कारी सैयद उस्मान मंसूरपुरी का गुड़गांव के मेदांता अस्पताल में आज इंतकाल हो गया। उनकी उम्र 76 साल थी। उनकी मौत की खबर से आलम इस्लाम और दुनिया में इनके लाखों मद्दाहों में गम की लहर दौड़ गई। लोगों ने मौलाना की मगफिरत के लिए दुआएं की हैं। उलमा हिंद के सदर हज़रत मौलाना कारी मोहम्मद उस्मान साहब, उनकी हम सेहतियाबी के लिए यहाँ दुआ करने का इरादा था, लेकिन अभी हाल ही के अंदर इत्तला आई कि उनका वेदांता के अंदर इंतकाल हो गया है। और इस पर हम लोग जमीयत उलमा मेरठ के तमाम ज़िम्मेदार हज़रात उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ करते हैं और अफसोस का इज़हार करते हैं, क्योंकि जमीयत उलमा हिंद के मोहतमिम कारी मोहम्मद उस्मान मंसूरपुरी जहाँ जमीयत उलमा हिंद के सदर थे, वहीं वो दारुल उलूम देवबंद जो एशिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है उसके कायम मकाम मोहतमिम भी थे। जमीयत उलमा हिंद के सदर कारी उस्मान साहब का इंतकाल की खबर आई और जिसे सुनते के साथ ही एक हम लोगों को बड़ा सदमा लगा कि वो एक मुसलमानों के नहीं बल्कि एक पूरे मुल्क के लिए नुकसान की खबर है। कि खबर से वाकई में हम लोगों की आंखों में आंसू है और दिल के अंदर एक बहुत बड़ा गम है कि वो बेचारे हम सब लोगों को यहाँ से छोड़कर चले गए।
और जमीयत उलमा हिंद के सदर दारुल उलूम देवबंद के कारगुजार मोहतमीम और माया नाज उस्ताद हज़रत मौलाना कारी सैयद मोहम्मद उस्मान मंसूरपुरी के सानह इर्तिहाल पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भी शदीद रंजो गम का इजहार किया जा रहा है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी शोबे दीनियात के असातिज़ा ने मौलाना के इंतकाल को मिल्लत इस्लामिया का बड़ा नुकसान करार दिया है। हज़रत की ज़िंदगी के अनगिनत पहलू हैं। आपने पूरी वज़ादारी के साथ, ईमानदारी के साथ और मतानत के साथ आपने उम्मते मुस्लिमा की खिदमत की, और जब भी इस कौम पर मुश्किल हालात पेश आए आपने अपने औकात को न सिर्फ उम्मत मुस्लिमा की खिदमत के लिए सर्फ किया, बल्कि आपने अपनी तबीयत की भी परवाह नहीं की। मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला होने के बावजूद आप असफ़ार करते रहे, दूर दराज इलाक़ों में जाते रहे और लोगों को राह रास्त पर लाने की कोशिश करते रहे, उनके मसाइल को हल करने की कोशिश करते रहे। एक बहुत बड़ा इल्मी खला और कायदे मिल्लत का भी खला हुआ है, जो बहुत ही लोगों को मग़मूम कर दिया है, क्योंकि उनकी जो क़यादत थी, उनकी जो सियादत थी, उनका जो मिल्लत के साथ उनका वालिहाना ताल्लुक़ था, वो उम्मत मुस्लिमा के लिए बहुत बड़ा सरमाया था। क्योंकि कारी उस्मान मंसूरपुरी रहमतुल्लाह अलैह जब भी मिल्लत के कुछ इशूज़ हुआ करते थे, उस पर बेबाकी से अपनी बात रखते थे। और अब बात कोरोना वैक्सीनेशन की। पहली फुर्सत में लोग कोरोना का टीका लगवाएं। वैक्सीनेशन के जरिए ही कोरोना की तीसरी लहर को रोका जा सकता है। बेंगलुरु के मशहूर डॉक्टर ताहा मतीन ने ये बात कही है। उन्होंने कहा कि लोग कोरोना के टीके के सिलसिले में अफवाहों पर हरगिज कान न धरें। देखिए, ये बीमारी है ही ऐसी कि वेव पर वेव आते रहेंगे इस पैंडेमिक में, और इसको अगर हमको रोकना चाहिए तो वैक्सीनेशन के बगैर ये वेव्स रुकने वाले नहीं हैं। तो ये तीसरी चीज़ है कि हम जल्द अज जल्द वैक्सीनेशन कराएं और जाकर वैक्सीन करा लें। इसके बारे में जो कॉन्स्पिरेसी थियोरीज हैं, वैक्सीनेशन कराए तो ये होता, वो होता, ये होता, नक्को लेने का, ये इसके ताल्लुक़ से कोई सबूत नहीं है किसी के पास। ये इंसानी ख़यालात हैं और हम ख़यालात की इताअत करने वाले नहीं हैं। साइंटिफिक प्रूफ्स हैं, अल्लाहु आलम, बाकी चीज़ें हम नहीं जानते हैं। हम वैक्सीनेशन लेंगे और खुदा से उम्मीद करेंगे, ऊंट को बांधेंगे और उस पर तवक्कुल करेंगे। ये तरीक़ा होगा हमारा। यकीनन वैक्सीनेशन लेने में जल्दी कीजिए और हर फर्द को वैक्सीनेशन लेना चाहिए। इससे थर्ड वेव भी रुक जाएगी और अपना देश भी बच जाएगा, अपनी माशी और हर किस्म के हालात तब्दील हो जाएंगे। हम इस देश को, इंसानियत को बचाने वाले बन जाएंगे। बराह करम जाकर वैक्सीनेशन लें और थर्ड वेव को रोकें इंशाअल्लाह। अमरावती जिले में कोरोना मरीजों की बढ़ती तादाद को देखते हुए नए कोविड सेंटर्स खोले जा रहे हैं। आज साबिक वज़ीर-ए-आज़म राजीव गांधी की बरसी के मौके पर अमरावती जिला परिषद रेस्ट हाउस को भी कोविड सेंटर बनाया गया। इस सेंटर का इफ्तिताह काबीना वजीर और कांग्रेस लीडर यशोमती ठाकुर के हाथों अमल में आया। इफ्तिताही तकरीब में साबिक वज़ीर-ए-आज़म राजीव गांधी को खिराज अक़ीदत पेश किया गया। इस मौके पर काबीना वजीर यशोमती ठाकुर ने आवाम से अपील की कि वो कोरोना की कड़ी को तोड़ने के लिए हुकूमत की जानिब से बताई जा रही एहतियाती तदाबीर पर अमल करें। महाराष्ट्र के राष्ट्रीय वजीर बच्चू कडू ने आज अमरावती के राजकमल चौक पर मरकजी हुकूमत के खिलाफ थाली बजाओ आंदोलन किया। प्रहार संगठन के बानी इन्होंने अपने हामियों के साथ खाद की बढ़ती कीमतें और तोर दाल को लेकर मरकजी हुकूमत की पॉलिसी के खिलाफ यह आंदोलन किया है। इन्होंने मरकजी हुकूमत की उन पॉलिसियों को किसान मुखालिफ करार दिया। बच्चू कडू ने कहा कि आज मुल्क भर का किसान परेशान हाल है। ऐसे में मरकजी हुकूमत ने खाद की कीमतों में इजाफे करके किसानों की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। 350 350 थाली अभी हम वर्तमान में हमारी सुबह शाम में जा रही है। दोनों समय जाती है? दोनों समय जाती है। दोनों समय मेनू चेंज करते हैं, साथ में भोजन दे रहे हैं। पैकिंग में ओनली हमारे लॉन्च क्लब के मेंबर ही पैकिंग कराते हैं। डिलीवरी बॉय को हम बाहर से बाहर देते हैं, सैनिटाइज करवा के एंट्री करते हैं, सैनिटाइज करके ही वापस एंट्री लेते हैं हम। और डोर टू डोर
जहाँ भी इंक्वायरी अब लक्ष्य बढ़ता है तो कहाँ तक की जाए? मैं तो ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि सबसे पहले तो कोरोना की महामारी धीरे धीरे कम हो, लेकिन क्या है कि 2-5 हमारे घर जैसे 14 दिन का हमने डे ले रखा है कि एक परिवार में अगर खाना जा रहा है तो उसकी पॉजिटिव रिपोर्ट जब चाहिए उसको 14 दिन का हम काउंटिंग करते हैं, उनको हम रिमाइंडर भी करते हैं कि सर आपके 14 दिन हो गए हैं, क्या रेगुलर रखें या कैसे रखें। 19 अप्रैल को हमें अजमेर से एक प्रेरणा मिली। अजमेर में लायंस क्लब की इस तरह की गतिविधियाँ चल रही थी, फेसबुक पे हमने देखा, उसमें लगा कि हमें क्यों नहीं, ये चित्तौड़गढ़ में भी ये समस्या बहुत ज़्यादा है कि बहुत सारे परिवार होम क्वारंटाइन है, पड़ोसी भी उनसे परहेज कर रहे हैं, रिश्तेदार भी उन पर हेल्प नहीं पहुंचा पाते हैं। तो एक विचार आया माइंड में कि क्यों नहीं हम इस तरह की सेवा उन लोगों के घर पे उनके परिवारजनों को ये पहुंचा पाए। और अब नाज़रीन एक आपको रिपोर्ट दिखाते हैं गजा के हालात पर। गजा के आसमान में इसराइली इलाका तैयारों के घन गरज, फजा के सुकूत को चीरती धमाकों की आवाज़ें, चीखों पुकार, हलाकतों और तबाहकारियों का सिलसिला थम गया है। इसराइल और हमास के बीच जंगबंदी मुआहदा तय पा गया है। आलमी बिरादरी ने जंगबंदी मुआहदे का खैर मकदम किया है। इसराइल और हमास के दरमियान जंगबंदी, 11 दिनों के बाद फरीकैन का जंगबंदी पर इत्तेफाक। अमेरिका समेत आलमी बिरादरी ने मुआहदे का किया खैर मकदम। जंगबंदी मुआहदे के बाद फिलिस्तीन में मनाया गया जश्न। हमले में अब तक 240 से ज्यादा हो चुकी हैं हलाकतें। गजा में जश्न का माहौल है। शहरी हाथों में कंदील लिए बड़ी तादाद में सड़कों पर निकल आए, नारेबाजी की और खुशी का इजहार किया। ये जश्न और खुशी इसराइल और हमास के दरमियान जंगबंदी के ऐलान और उस पर अमल दरामद शुरू होने के नतीजे में मनाई जा रही है। ग्यारह दिनों के हमलों और खूनरेजी के बाद इसराइल और हमास के दरमियान जंगबंदी हो गई है। फरीकैन गैर मशरूत जंगबंदी की मिस्री तजवीज़ पर मुत्तफिक हो गए हैं। अमेरिका और आलमी बिरादरी ने भी जंगबंदी मुआहदे का खैर मकदम किया है। इसराइल की मकामी मीडिया का दावा है कि काबीना ने अमेरिका की तरफ से शदीद दबाव के बाद जंगबंदी का फैसला किया। I extend my sincere gratitude to President al-Sisi and the senior Egyptian officials who played such a critical role in this diplomacy. I also appreciate the contributions of other parties in the region who have been engaged in working toward the end of hostilities. These hostilities have resulted in the tragic deaths of so many civilians, including children. And I send my sincere condolences to all the families, Israeli and Palestinian, who have lost loved ones, and my hope for a full recovery for the wounded. The United States committed to working with the United Nations, and we remain committed to working with the United Nations and other international stakeholders to provide rapid humanitarian assistance and to marshal international support for the people of Gaza and the Gaza reconstruction efforts. 11 दिनों तक हमलों और जवाबी हमलों के नतीजे में गजा में 232 फलस्तीनी जाबहक हुए, उनमें 65 बच्चे भी शामिल हैं। तकरीबन 2000 फलस्तीनी जख्मी हुए। इन हमलों के नतीजे में 50,000 से ज्यादा फलस्तीनी बेघर हुए, जो स्कूलों और दीगर जगहों पर पनाह लिए हुए हैं। हमलों और जवाबी हमलों में इसराइल में 12 अफराद हलाक हुए। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने जंगबंदी का खैर मकदम करते हुए कहा है कि इसराइली और फ़लस्तीनी क़यादत की जिम्मेदारी है कि जंग के बुनियादी असबाब पर गौर करने के लिए बातचीत करें। I welcome the ceasefire between Gaza and Israel after 11 days of deadly hostilities. I extend my deepest condolences to the victims of the violence and their loved ones. I commend Egypt and Qatar for the efforts carried out in close coordination with the UN to help restore calm to Gaza and Israel. And I call on all sides to observe the ceasefire.
उधर हमास ने इसराइल की जानिब से ऐलान करदा जंग बंदी को फिलिस्तीनी आवाम की जीत और इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू की शिकस्त बताया है। इसराइल और हमास के दरमियान जंग बंदी कराने में मिस्र, कतर और अक़वाम मुत्तहिदा ने मरकजी किरदार अदा किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। और नाज़रीन, जैसा कि हम सभी जानते हैं, हिंदुस्तान में कोरोना वबा जो है वो बहुत तेज़ी से फैला। हालांकि इन दिनों अब केसेस गुज़श्ता हफ्तों के मुकाबले कम आ रहे हैं। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद व इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है।